السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کتاب اس سیریز ماسٹرنگ عربک ٹیکسٹ کا چھٹا سیشن دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس چھٹے سیشن میں ہم آج انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے محمد البشیر الابراہیمی کے آثار جو ہے، آثار الامام محمد البشیر الابراہیمی رحمہ اللہ تعالی، ان کے آثار سے جو 5 والیومز میں چھپی ہیں۔ ایک آرٹیکل میں سے ایک پیراگراف دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محمد البشیر الابراہیمی جو تھے، یہ جزائر الجیریا کے رہنے والے تھے، اور یہ اس زمانے میں تھے اس وقت کی بات ہے جب الجیریا جو تھا وہ فرانس کے قبضے میں تھا۔ اٹ واز آکوپائڈ بائی فرانس 18 فرام 1830 تو آلموسٹ 1962 میں پھر الجیریا جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ اور الجیریا میں ایسٹ سائڈ سے ایک سٹی ہے سطیف، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے 1306 ہجری میں، یعنی 1889 میلادی میں، جہاں پہ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد سے، اپنے چاچا سے اور باقی وہاں کے اہل علم سے حاصل کی۔ اور ان کی وفات 1385 ہجری میں یعنی 1965 میں ہوئی ہے۔ اور عالم عرب میں ان کو شمار کیا جاتا ہے ایک ایز اے مفکر، ایز اے ادیب۔ اور جو وہاں پہ طویل جہاد کا سلسلہ تھا، اس میں ایک کڑی یہ بھی تھے محمد البشیر الابراہیمی رحمہ اللہ تعالی۔ اور انہی کی جو آرٹیکلز وغیرہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ چھاپا ہے ان کے گرینڈ سن نے، احمد طالب الابراہیمی نے، ان 5 والیومز میں، اس نام سے آثار الامام محمد البشیر الابراہیمی۔ اس میں ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ تعالی یہ پیراگراف جو ایک آرٹیکل سے ہے، جس میں امام بشیر الابراہیم رحمہ اللہ تعالی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہی صحیح قانون ہے، یہی عالم بشریت کے لیے صحیح طریقہ ہے، اس دور میں بھی اور پہلے بھی جیسے پہلے تھا۔ کہتے ہیں اسی آرٹیکل میں، وَإِنَّ يَقظَةَ الضَّمِيرِ الَّذِي سَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَازِعَ اللَّهِ فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ وَمُرَاقَبَتُهُ لِأَعْمَالِ صَاحِبِهِ لَهِيَ أعلى وأسمى ما جاء به الإسلام من اصول التربیت النفسیہ۔ کہتے ہیں کہ انسان کے ضمیر کا بیدار ہونا، جس ضمیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ کا واضح ہوتا ہے، یعنی واضح واعظ ہوتا ہے، روکنے والا ہوتا ہے برائیوں سے ہر مومن کے نفس میں۔ اور اس انسان کے اعمال پر نظر رکھنا یہ ایسی چیز ہے، یعنی یقظۃ الضمیر، ضمیر کا زندہ ہونا، بیدار ہونا، یہ ایسی چیز ہے جو سب سے بلند اور سب سے نوبل، سب سے بہترین چیز جو ہے اسلام لے کر آیا ہے انسان کی نفسی تربیت کے اصولوں کے متعلق۔ جو سب سے بہترین اصول اور بلند اصول اسلام لے کر آیا ہے وہ ہے یقظۃ الضمیر، یعنی انسان کا ضمیر جو ہے وہ بیدار ہونا۔ یہاں پر جو یہ لفظ ہے یقظۃ الضمیر، یقظہ جو ہے یہ مصدر ہے، یقظہ جو ہے یہ مصدر ہے، اس کا ورب ہے یقظ یقظ، یقظ یقظ، اس کا ایک مصدر ہے یقظ، فهو یقظ، کہا جاتا ہے یقظ الشخص، یقظ الشخص اس کا مطلب ہے صحا، یعنی بیدار ہو جانا، یعنی یہ سونے کے اپوزٹ ہے، سونے کے اپوزٹ ہے۔ اسی طرح یقظہ کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ ٹو بیکم کاشس، ٹو بیکم کاشس، یا کوئی کسی چیز کو گراسپ کرنا، کسی چیز کو انٹیلیجنٹلی گراسپ کرنا، اچانک گراسپ کرنا، اس کے متعلق متنبہ ہو جانا یا کوشش ہو جانا، اس کو بھی کہتے ہیں یقظہ یا یقظہ۔ یہاں پہ یقظہ سے مراد ہے بیداری، انسان کے ضمیر کی بیداری۔ اچھا، اور ضمیر جو لفظ یہاں پہ آیا ہے، ضمیر کے مختلف معنی، ایک ضمیر وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گرامر میں پروناؤن،
जैसे हुआ, हिया, हुमा, अंत, अंतुमा, और प्लूरल इसका ज़मायर। और ज़मीर कहते हैं हर उस चीज़ को जो इंसान अपने नफ्स में छुपाता है, अपने नफ्स में जो इंसान छुपाता है, और जिसका मुताला करना जिसके जिस वो मुश्किल होता है, यानी वो अंदर इंसान के छुपा होता है। और ज़मीर का यहाँ पर मुराद है मॉरल कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, यानी ऐसी नफसी इस्तिदाद, ऐसी नफसी पोटेंशियल जिसके ज़रिए इंसान खबीस और तय्यब यानी अच्छे और बुरे चाहे वो फिर वो अच्छा बुरा अमल हो या कोई कौल हो या कोई आइडिया हो, उनमें से अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ करना, उनका इदराक करना, और अच्छे को अच्छा जाना और बुरे को बुरा जाना, इसको कहते हैं ज़मीर। एक और लफ्ज़ जो यहाँ पर आया है वाज़ि, यहाँ पे लफ्ज़ आया है वाज़ि। वाज़ि जो है ये इसमें फ़ाइल है, वज़अ से, वाज़ि जो है ये इसमें फ़ाइल है। वज़अ से, वज़अ का मतलब होता है ज़जरा व मना, किसी को रोकना या किसी को डांट डपट करना। ठीक है, इसलिए वाज़ का मतलब होता है जाजिर व मानि, जाजिर व मानि उन दाखिल, यानी इंसान को अंदर से जो कोई रोकने वाली चीज़ होती है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है, वाइज़ुल्लाह फी कल्बि कुल्लि मोमिन, यानी अल्लाह ताला का वाइज़ एडमॉनिशर जो हर मोमिन के अंदर होता है, जो उसको किसी पर्टिकुलर सलूक से रोकता है, मना करता है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर लफ्ज़ आया है मुराकबा। मुराकबा, मुराकबा जो है ये मजदर है, राकबा से, राकबा अला वज़नी फ़ाअल, फ़ाअल, राकब युराकिबु मुराकबतन फहुव मुराकिब वस्मुल मफ़ऊल मुराकब। मुराकब का मतलब होता है किसी पर नजर रखना, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को सुपरवाइज करना, किसी का मुलाहजा करना, उस पर नजर रखना। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे लफ्ज आया है कि अस्मा। अस्मा जो है ये इस्म तफदील है। असल जो लफ्ज है वो है सामिन। सामिन ये निकला है समा यस्मू से, समा यस्मू से। समा यस्मू का मतलब होता है बुलंद होना, इसलिए सामिन का मतलब है आलिन व रफीइन, असल में है सामी, सामी, सामी। और इसमें ये या जो है ये फिर हज़्फ किया जाता है जब ये नकिरा होता है, और इस या के बदले दिया जाता है इसके एवज कसरा, बनता है सामिन। और इसी सामिन से निकला है अस्मा। सामिन का मतलब बुलंद, अस्मा का मतलब सबसे बुलंद, सबसे बुलंद या सबसे नोबल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सामिन का एक मतलब होता है नबील भी, यानी नोबल। इसलिए कहते हैं कि ज़मीर का बेदार होना, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़मीर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है कि ये अल्लाह ताला का वाज़ या वाइज होता है हर मोमिन के नफ्स में। ये ऐसी चीज़ है जो सबसे बुलंद और सबसे नोबल चीज़ इस्लाम लेकर आया है, किसके मुतलिक, मिन उसूल तरबियत नफ्सिया, यानी साइकोलॉजिकल एजुकेशन जो हम जिसे हम कह सकते हैं, यानी इंसान के नफ्स की तरबियत के जो उसूल है, उसमें जो सबसे बुलंद तरीन चीज़ जो है वो क्या है, यक़ज़तु ज़मीर है, इंसान के ज़मीर का बेदार होना, उसको बेदार करना। बयान करते हैं वही अक़रबु तरीक़िन लितअतील गराइज़ शर्र फिल इंसान। कहते हैं कि ये सबसे करीब तरीन रास्ता है इंसान में शर की तबीयत को मुअत्तल और डिफंक्ट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे हम इन दो लफ्ज़ों पर गौर करेंगे, तातील और गराइज। तातील जो है ये मजदर है अत्तल से, फ़अल के वजन पर, सुलासी मजीद, फ़अल, फ़अल, अत्तल युअत्तिलु तअतीलन, इसमें फ़ाइल है मुअत्तिल और इसमें मफ़ऊल है मुअत्तल। कहा जाता है अत्तल आलता, किसी डिवाइस को मुअत्तल करना भी माना उसको खराब करना, उसको करप्ट करना, उसको डिफंक्ट करना। इसी तरह का अरब कहते हैं अत्तल बियर, यानी किसी कुएं पर जाना छोड़ देना, किसी कुएं को तर्क कर देना, उससे पानी न लेना। इसी तरह कहा जाता है अत्तलहुल मरज़ अन अमली, किसी शख्स को बीमारी ने अमल से मुअत्तल कर दे, बीमारा उसको अमल से, काम से रोक दिया, उसको हिंडर किया, उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया। इसी तरह जो लफ्ज़ आया है गजा, गराइज, गराइज जो है इस सेंटेंस में है, ये जमा है, इसका सिंगुलर है गरीजा। गरीजा कहते हैं इंसान की जो नेचर, जो फितरत, जो तबीयत होती है खैर और शर के मुतलिक, उसको कहते हैं गरीजा।
जिन्हें हम नेचुरल इम्पल्सेस भी कहते हैं। कहते हैं कि ये ज़मीर का बेदार होना ये सबसे करीब तरीन रास्ता है इंसान में शर की तबीयत, शर के इम्पल्सेस, शर के इंक्लिनेशंस उसको मुअत्तल, डिफंक्ट करने के लिए। फिर कहते हैं वफ़र्कुन अज़ीमुन बैन मन यमनअहु मिन अस्सरिकति मसलन खौफुल्लाह व बैन मन ला यमनअहु मिनहा इल्ला खौफुल कानून। बयान करते कि एक अजीम फ़र्क है उस शख्स के दरमियान जिसको जिसको रोकती है किसी बुरी काम से, मिसाल के तौर पर चोरी से, अस्सरी का यानी चोरी, जिसको चोरी से रोकती है अल्लाह ताला का खौफ, इस शख्स के दरमियान और उस शख्स के दरमियान जिसको चोरी से नहीं रोकती है मगर सिर्फ कानून का खौफ। ठीक है। फल अव्वल यअतकिदु अन्नहु बिआइन मिन अल्लाह। पहला जो है उसको ये अकीदा होता है, यानी जिसको अल्लाह ताला का खौफ चोरी से रुकाता है उसको ये अकीदा होता है, यकीन होता है, बिलीफ होता है कि वो अल्लाह ताला की निगरानी में है। बिआइन मिन अल्लाह यानी अल्लाह ताला की आंखों के नीचे है, अल्लाह ताला की निगरानी में है। तुराकिबुहु फिस्सिर्रि वल अलम, जो उसको सिर में भी और आलन में भी, यानी सिक्रेसी में भी और पब्लिक में भी उस पर नजर नजर रखे हुई होती है, उसको सुपरवाइज करती है, यानी अल्लाह ताला की आंख उसको सिक्रेसी में भी और पब्लिक में भी उस पर नजर रखे हुई होती है। अच्छा, सिर, सिर का मतलब है चोरी छुपे, और आलन जो है ये इसका अपोजिट है। आलन, आलन यानी जहरन वन की जहरन वन की यानी खुलेआम। आलन यानी खुलेआम, इन पब्लिक। कहते हैं फहुवा ला यसरिकु फिस्सिर वला फिल आलन। कहते हैं क्योंकि पहला जो होता है उसको ये यकीन होता है कि मैं अल्लाह ताला की नज़रों के नीचे हूँ, अल्लाह ताला की नज़र मुझ पर चोरी सिक्रेसी में भी है और पब्लिक में भी, इसलिए वो ना ही चोरी छुपे ही चोरी फिर करता है और ना ही पब्लिक में। वस्सानी अलबत्ता जो दूसरा होता है जिसको अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता, जो सिर्फ कानून के खौफ से कभी कभी चोरी से रोकता है, ला यमनअु मिन अस्सरिकति इल्ला कानून, इसको चोरी से नहीं रोकता है मगर सिर्फ वो कानून युआखिजु अला ज़म, जो इसे गुनाह पर मुआखजा करेगा। मगर कब? बाद कियामिल बय्यिनातिल अलैहि, जब इस पर विटनेस कायम हो जाएंगी, जब इस पर प्रूफ्स कायम हो जाएंगी। यहाँ पर जो ये कानून युआखिज जो है यानी मुआखजा युआखिजु, इसका माज है आखजा, फ़ाअल के वजन पर, असल में है सुलासी अखद, अखद इसी में से निकला फिर आखज, आखज यु आखिजु मजदर मुआखजतन। आखज रजुल बिमाना आतबहु लामहु आतब, यानी किसी को डांट डपट करना, किसी को मलामत करना। इसी तरह किसी को किसी गुनाह पर मुआखजा करना, किसी क्राइम पर मुआखजा करना बिमाना आकब, यानी उसको पनिश करना, उसको उसकी जजा देना। इस तरह बैयिनात जो यहाँ पर लफ्ज है ये मुफरद है, बई उसका सिंगुलर प्लूरल है बैयिनात, सिंगुलर है बैयिना। बैयिना असल में कहते हैं हुज्जतुन वादिहा, यानी वाज़िह एक हुज्जत, एक दलील, बुरहान दलील। और फिक्ह में या कानून में कहा जाता है बैयिना शहादत को, यानी विटनेस को या सबूत को, या हर वो चीज़ जो हक को साबित करे, जिससे फिर दो शख्सों के दरमियान फैसला किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं वस्सानी, दूसरा जो है उसको नहीं रोकता है चोरी से सिवाय कानून, जो उसको मुआखजा करता है, पकड़ता है, सजा देता है किसी क्राइम पर, मगर तब जब उस पर विटनेस जो है कायम हो जाए, प्रूफ्स कायम हो जाए। वफ़ी कुदरतिल इंसान, बयान करते हैं मगर इंसान की कुदरत में है, इंसान की कैपेसिटी में है, अन यतहाशा कुल्ल अस्बाबिल मुआखजा, अन यतहाशा कुल्ल अस्बाबिल मुआखजति अज़्ज़ाहिरति। बयान करते हैं कि मगर इंसान की कुदरत में है कि वो हर ज़ाहिरी पनिशमेंट के असबाब को इवेड कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, उसका इज्तिनाब कर सकता है, यानी वो इससे बच सकता है। फ़ैज़ा अमीना ज़ालिका, बस जब उसको उस चीज़ के मतलब अमन होगा कि मैं उन तमाम असबाब मुआखज़ा के असबाब को अवॉइड कर सकता हूँ, कार शर, फिर वो आराम से उसके बाद शर को कमिट करेगा, मुकदिमन गैर मुहजिमिन, आगे बढ़कर बोल्डली, पीछे हटकर नहीं। देखिए यहाँ पर ये लफ्ज़ है यतहाशा, यतहाशा, इसी तरह लफ्ज़ है कारफ़ा,
इसी तरह लफ्ज़ मुक़दिमन, इसी तरह लफ्ज़ मुहजिम, ये चार लफ्ज़ हम पहले देखेंगे। यतहाशा जो है, इसका माजी है तहाशा, तफ़ाअल के वज़न पर। तहाशा या तहाशा अन भी कहा जाता है। यतहाशा, तहाशा का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से दूर भागना। इब्तादानु, किसी चीज़ से दूर जाना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में किसी चीज़ को इवेड करना। ठीक है, उससे उसको अवॉइड करना, उससे बचना। इसी तरह का रफा का मतलब ये फा अला के वजन पर है। का रफा का मतलब होता है इर्तकाबा, यानी किसी गुनाह में मुलवस होना, किसी गुनाह का इर्तिकाब करना। इसलिए कहा जाता है का रफा ज़ंब बिमाना कार, किसी गुनाह के नज़दीक होना, व खालत उसमें मुलवस हो जाना, दाना उसके करीब हो जाना, उसका इर्तिकाब करना। इस तरह मुकदिम जो हमने देखा लफ्ज़ मुकदिमन गया, मुकदिम जो है ये निकला है अकदमा से। अकदमा का एक माना होता है किसी को आगे करना। इसी तरह अकदमा अल अमल यानी किसी काम के करने में शुरू हो जाना बिला तवक्कुफ। ठीक है, इसी तरह अकदमा का मतलब होता है जुर्अत का, बोल्डनेस का, यानी आगे बढ़कर जुर्अत कर कर कोई काम करना। फिर दूसरा लफ्ज़ जो हमने देखा मुहजिम, मुहजिम, मुहजिम जो है ये इसमें फाइल है अहजम से, अफ़अल के वजन पर। अहजम युहजिम मुहजिम। कहा जाता है अहजम अनिल किताल, लड़ने से एहजाम करना, बिमाना नकस व कफ़ा में पीछे हटना और रुकना, पीछे हटना और रुकना। इसलिए अकदमा का अगर मतलब होता है आगे बढ़ना, जुर्अत दिखाना। अहजम का मतलब होता है पीछे हटना, रुकना। इसलिए कहते हैं कि इंसान की कुदरत में है कि वो हर वो ज़ाहरी पनिशमेंट के असबाब को अवॉइड कर सकता है, उससे बच सकता है, दूर रख सकता है। और फिर जब उसको इस चीज़ के मुतलिक अमन होगा कि मुझे कोई असबाब ऐसे नहीं है जो जिसकी वजह से मुझे किसी शर के इर्तिकाब पर मुआखज़ा किया जाएगा, का रफ़ शर, फिर वो उस इवल का किसी बुरे काम का इर्तिकाब करेगा, उसमें मुलवस हो जाएगा, जुर्अत के साथ आगे बढ़कर, गैर मुहजिमिन, पीछे हटकर नहीं। फल खौफ मिन अल्लाह, ये हम क्या देख रहे थे कि इन दो शख्सों के दरमियान फ़र्क, कि एक शख्स मतलब एक कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पर सिर्फ कानून है, मैन मेड लॉज, वहाँ पे कोई मतलब दीन गालिब नहीं है, मतलब इस्लाम वहाँ पे नहीं है, अल्लाह ताला का खौफ नहीं है। दूसरा शख्स वो है जो ऐसे निज़ाम में है, ऐसी जगह पे है जो पहले तो एक तो इस्लामी मुल्क है, या वो खुद मुसलमान है, और मुसलमान जो है उसको सबसे पहली चीज़ जो रोकती है वो अल्लाह ताला का खौफ होता है। इसलिए कहते हैं फल खौफ मिन अल्लाह यजतस्सु सरिका यजतस्सु सरिकता व जमी अशुरूर मिन नफ्स। बयान करते हैं कि अल्लाह ताला का खौफ चोरी और बाकी जो तमाम इवल से बुरे काम है उसको इंसान के नफ्स से उखाड़ के रख देता है। हत्ता ला तख्तुरा अला बालिल मुमिन सादिक, यहाँ तक कि फिर सच्चे मोमिन के दिमाग में उसका ख्याल भी फिर नहीं आता है। यहाँ पे लफ्ज़ है एक तो यजतस्सु, इसी तरह तख्तरु और बाल। यजतस्सु जो है इसका माजी है इजतस्सा, इजतस्सा, और ये कुरान में भी आया है ये लफ्ज़ इजतस्सा यजतस्सु। कुरान में भी आया है इज्तुस्सत मिन फौकिल अर्द मा लहा मिन करार, यानी बुरे कलमे की मिसाल। ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। फिर आगे मिसाल देते हैं अल्लाह ताला बुरे कलमे की, और मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा उज्तुस्सत मिन फौकिल अर्द। ठीक है, इसलिए इज्तस्सा का मतलब होता है, कहा जाता है इज्तस्सा शजरा, पेड़ को निकाल देना अपने रूट से, उसको उखाड़ के रख देना। इस तरह इज्तस्सा का मतलब होता है काट देना, कतअहु। इस तरह खतरा जो लफ्ज़ है, खतरा, इसमें फ़ाइल खातिर और इसमें मफ़ऊल मख्तूर, खतरा बी हरफ जर इसके साथ आता है, अला भी आता है, फी भी आता है, लाम भी आता है। कहा जाता है खतर अल अमरु बिबालिही, यानी किसी के बाल में, बाल जो हमने देखा बाल यानी ये वो उर्दू वाले बाल नहीं, बाल का मतलब है जहन। अरब बाल कहते हैं जहन को, खातिर को, कल को, दिल को। ठीक है, यानी इंसान का जो जो थिंकिंग सिस्टम जो होता है, कल दिल जो होता है, जहन जो होता है, उसे बाल कहते हैं। और बाल का एक और मतलब ये हाल, इंसान की हालत या शान।
خطر الامر ببال ہی یعنی کوئی امر انسان کے ذہن میں آنا، انسان کے دل میں آنا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو یاد انسان کے ذہن میں آنا، یا تو بولنے کے بعد یا انسان کے ذہن میں کوئی چیز آنا، تو کم انٹو مائنڈ، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں اٹ اپیئر ٹو می، اٹ سیم ٹو می، یعنی اٹ کیم انٹو مائی مائنڈ. بیان کرتے وبذالک یأمن الناس علی اعراض، بیان کرتے کہ اسی ذریعے یعنی جب ایسے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف چوری اور تمام شرور سے روکے رکھے گا. وبذالک یأمن الناس علی اعراض، اسی کے ذریعے لوگ جو ہے وہ اپنی اعراض یعنی اپنی عزتوں کے متعلق، اپنی خون و دمائہم و اموالہم، اپنی خون کے متعلق اور اپنے مال کے متعلق جو ہے امن میں رہیں گی. اعراض جو ہے یہ جمع ہے، اس کا سنگولر ہے ارض. ارز کا مطلب ہے عزت، آنر. آراز پلیورل ہے، اس کا سنگولر ہے ارز. عزت آنر کسے کہتے ہیں؟ عزت آنر اگر ہم ڈیفائن کریں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ما يمدح ويذم من الانسان في نفسه وحسبه او في من يلزمه امره، ما يفتكر به الانسان من نسب او شرف، او ما يصونه الانسان من نفسه او سلفه، او من يلزمه امره كالزوجة والبنت. یعنی انسان میں جو عزت ہوتی ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے متعلق اس کو یا تو تعریف کی جاتی ہے یا مذمت کی جاتی ہے، یا تو اس کے نفس کے متعلق، اس کے حسب و نسب کے متعلق، یا جس کے متعلق انسان کو فخر ہوتا ہے اپنی نفس کے، اپنی شرف کے متعلق، یا جس انسان جس چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے نفس کے متعلق، اپنے آبا و اجداد کے متعلق، یا انسان پر جو فیملیز میں لازم ہوتے ہیں، اہل و عیال، زوجہ یعنی اس کی وائف اور اس کی بیٹی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اور انسان کی ماں، انسان کی بیٹی، انسان کی وائف، انسان کی عزت ہوتی ہے، آنر ہوتی ہے، عرض. ٹھیک ہے، آنر، عزت انسان کی. پھر کہتے ہیں اما الخوف من القانون، اس کے برعکس قانون سے خوف، فربما زاد الناس ضراوة بالشر بما يتفننون فيه من الحيل التي تجعلهم في مأمن من مؤاخذة القانون. بیان کرتے ہیں کہ قانون کا خوف کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو شر کے متعلق زیادہ بڑھاوا دیتا ہے، اس چیز کے سبب کہ جو ان کو مختلف طریقوں کے ہیلے آتے ہیں، اسٹریٹجیز آتی ہیں، ہیلے بہانے آتے ہیں، جن کے ذریعے وہ جو ہیلے بہانے ان کو ایک سیکور پلیس پہ رکھتی ہے قانون کی پکڑ سے، قانون کی پکڑ سے. یہاں پہ جو لفظ ہے ذراوہ، اسی طرح یہ تفننون، اسی طرح مأمن جو ہے یہ اس میں مکان ہے، مأمن یعنی پلیس آف پیس، سیکورٹی. ٹھیک ہے. اب جو ذراوہ جو ہے یہ مصدر ہے واریہ سے، عربک میں ایک ورب ہے واریہ، واریہ، اسی کا مصدر ہے ذراوہ. ذراوہ کا مطلب ہے اشتد، یعنی کوئی چیز انٹینسفائی ہو جانا. ٹھیک ہے، کوئی چیز انٹینسفائی ہو جانا. یا اسی طرح کہا جاتا ہے زاریہ بھی او علیہ، کسی چیز کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کے متعلق ذریعہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی شخص کوئی چیز کو لازم پکڑتا ہے، جب اس کو اس کا شغف ہو جاتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے، اس کے متعلق جرأت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تفنن کا مطلب ہوتا ہے تنوعت، یعنی مختلف قسم کے ہو جانا. یا اسی طرح تفنن فی الامر، کسی معاملے کے متعلق تفنن کرنا بمعنی ابدع، یعنی اس میں ماہر ہو جانا، اس میں مہارت دکھانا. یا کہا جاتا ہے تفنن فی القول، کلام اور لکھنے کے متعلق تفنن بمعنی مختلف قسم کے اچھے اسلوب، سٹائلز اختیار کرنا لکھنے میں یا بولنے میں. یعنی تفنن جو ہے، تفنن کا مطلب ہے تنوع، تنوع. ٹھیک ہے، تنوع. میں کہتے ہیں فكأن هذه القوانين الأرضية تقول للناس، فكأن هذه القوانين، چونکہ یہاں پہ هذه جو ہے یہ ان كأن کا اسم ہے، اور القوانین پھر اس هذه کا بدل ہے، اس لیے القوانین. فكأن هذه القوانين الأرضية تقول للناس،
मैं कहते कि ये ऐसा मामला है कि जैसे कि ये ज़मीनी कानून जो है, ज़मीनी कानून जो है, ये लोगों को कहते हैं ला सबील ली अलैकुम मा दुमतुम मुस्ततरीन मिन्नी, कि मेरे लिए तुम्हें मुआखजा करने का, तुम्हें पनिश करने का कोई रास्ता नहीं है जब तक तुम मुझसे छुपे हुए हो। मुस्ततरीन मिन्नी, मुझसे छुपे हुए, यानी कानून कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग उससे छुपे हुए, मगर अल्लाह जो है वो बहुत बहुत कुछ कर सकता है अगर इंसान छुपा हुआ भी हो। इसलिए कहते हैं कि जैसे कि ये अर्जी ज़मीनी कवानीन लोगों को ये कहने लगते हैं कि ला सबील अली अलैक, कि मेरे लिए, यानी कानून के लिए, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे खिलाफ, यानी तुम्हें पकड़ने के खिलाफ, तुम्हें मुआखजा करने के खिलाफ, तुम्हें पनिश करने के मुतलिक, जब तक तुम मुझसे छुपे हुए हो, गाइबीन अन आईनी, जब तक तुम गायब हो मेरी आंखों से। वलिज़ालिका फहिय ला तमनउल फसाद फिल अर्ज़, इसलिए कहते हैं कि कानून जो है, खाली कानून ज़मीन पर फसाद को नहीं रोक सकता। बल तजीद तमक्कुन फी, बल्कि कभी कभार ये ज़मीन पर इसको ज़्यादा एस्टेब्लिश कर देता है, ज़्यादा स्ट्रांग कर देता है। वंतशार शुरूर फ़ी हाज़िल असली, इसलिए कहते हैं कि इस ज़माने में जो मुख्तलिफ़ किस्म के इवल्स फैल चुके हैं, अस्तक शाहिद अला ज़ालिक, ये इस चीज़ पर सबसे सच्ची गवाही है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट चीज़ जो हमने देखी वो है ला सबील ली अलैकुम, ये तरकीब हमें देखनी है। ला सबील ली अलैकुम, अगर हम लफ्जी तर्जुमे से करेंगे इसका मतलब होगा कि कोई भी रास्ता नहीं मेरे लिए तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे ऊपर, मगर यहाँ पर रास्ते से रास्ता मुराद नहीं, ये उस्लूब जो है कुरान में भी आया है मुख्तलिफ आयतों में। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कहते हैं मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, या इसी तरह दूसरे आयत में कहते हैं फमा जअल अल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, मा जअल अल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। सबील का यहाँ पर मतलब है मुआखजा या मुआकबा, यानी पकड़ करना, सजा देना। इसलिए आयत का मतलब होगा कि मुहसिनीन के खिलाफ कोई भी रास्ता, यानी कोई भी सजा देने की वजह नहीं है। इसी तरह फ़इन अतानकुम, अगर वो तुम्हारी इताअत करेंगे, तुम्हारा मानेंगे, फला तबगु अलैहिन सबीला, बस तुम मत ढूंढो उनके खिलाफ रास्ता, बिमाना उनको पकड़ने, उनको सजा देने की का कोई सबब तुम मत ढूंढो। इसी तरह फमा जअल अल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, अल्लाह ताला ने नहीं रखा है तुम्हारे लिए उनके खिलाफ कोई रास्ता, बिमाना अल्लाह ताला ने नहीं रखा है तुम्हारे लिए उनके खिलाफ उनको मुआखजा करने का, उनको सजा देने का कोई सबब। इब्न आशुर कहते हैं वसबील अस्लहु अतरीक, सबील असल में कहते हैं तरीक को, यानी रास्ते को। वयुतलकु अला वसाइल वयुतलकु अला वसाइल व असबाबिल मुआखजा, कहते हैं कि सबील का अरब के यहाँ इतलाक होता है उन मीन्स और असबाब पर जो जिनके जरिए किसी को पकड़ की जाती है, उसको सजा दी जाती है। ठीक है, इनको सजा दी जाती है। इसलिए यहाँ पर जो ये तरकीब है जो लास्ट में मोहम्मद बशीर अल बशीर अल इब्राहिमी के कलाम में आया है कि ये अर्ज कवानीन जैसे कि इंसान को कहते हैं कि ला सबील अली अलैकुम, बिमाना मेरे लिए तुम्हें पकड़ने की कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें सजा देने का कोई रास्ता नहीं है जब तक तुम मेरी आंखों से छुपे हुए हो, गायब हो। तो ये था मोहम्मद अल बशीर अल इब्राहिमी रहमहुल्लाह, इनकी किताब से एक पैराग्राफ जो हमने आज देखा, जिसमें हमने मुख्तलिफ वर्ड्स देखे, इस पैराग्राफ को समझा। वलिल्लाहिल हम्द, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।